बचपन में वो होता था कि थिएटर में खाना नहीं मंगाते, बहुत महंगा होता है, मैं मंगाता हूँ। मुझे मन करता है बड़ा टॉप पॉपकॉर्न वाला टब खरीदने का। इकिगाई में मेरा इकिगाई अय्याशी है और मैं उसी के लिए पैसा कमाऊं। I wake up with a morning anxiety of not being able to fulfill. Back of the mind वो है कि क्योंकि इन्होंने इतना struggle किया और ये हमारे लिए किया। Now it's time that we work very hard and give it back to them. Do you remember a time जब आपके पेरेंट्स ने आप पे भरोसा दिखाया? I think जब उन्होंने मुझे ना अकेले रहने के लिए परमिशन दे दी थी। मम्मी पापा का है कॉन्फिडेंस मुझ पर कि कर लेगी ये। कुछ भी होता है ना, like if he's paying for something, he'll message me on WhatsApp कि I have given 100 rupees to this, 200 rupees to mom. I get so irritated, like as if I'm his client or something. He's updating me like. Unrelatable. मेरी मम्मी तो 2 लाख रुपए भेज दो। क्यों? तुमसे मतलब? अरे हद हो गई भाई। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ जेन ज़ी गेट्स रियल विद मनी। हम सबके लिए पैसों के माइलस्टोन्स एज के साथ चेंज होते रहते हैं। बचपन में अपने पिगी बैंक में उतने पैसे चाहिए होते हैं जिससे अपनी फेवरेट चॉकलेट खरीद सके। बड़े होते ही अपने फेवरेट वीडियो गेम्स, स्नीकर्स, वॉच, फोन के लिए हसल शुरू हो जाता है। फिर शुरू होती है अडल्टिंग और आती हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक घर, एक गाड़ी, कुछ पैसे अभी के लिए और कुछ पैसे बाद में बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके लिए चाहिए होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसलिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस has actually come out with the India Protection Quotient 6.0, which is a survey that quantifies urban India's financial preparedness and financial wisdom. Its goal is one India, one mission, protection for all. How to protect ourselves from future financial uncertainties. And you know what? IPQ also has a Gen Z edition to understand the financial preparedness of Gen Zs. So this Independence Day, let's talk about financial planning and independence with some of our favorite Gen Zs on Gen Z's Get Real with Money in association with Max Life Insurance. We have on the table with us some really cool and awesome people. To begin with, Ehsaas, my bestie, who is an actor, who also happens to be an actor, but she's here because, you know, we really like each other. We have Aastha Shah, a content creator and a CFA level 2. क्या होता है ये? हाँ, ये explain करेगी, you know. Chartered financial analyst. Exactly. क्या? एक मिनट भाई। Chartered financial something like that. Chartered financial analyst. आपने नहीं बताया था पढ़े लिखे लोग। हमको ना हर टेबल पे एक पढ़ा लिखा इंसान आना पड़ता है। There is Aditya Kulshresht, aka Kullu. शुक्रिया दी। Very happy to have you here. He's a stand-up comedian, writer, and wannabe बहुत सारे wannabe हैं जिंदगी में। अभी कॉमेडियन और राइटर तक सीमित रखते हैं। चलो बढ़िया। And then we have Swastika Rajput, who is a wonderful poet. ये आप कोशिश कर रहे हो, आपने फर्जी मुशायरे में कोशिश की पोएट्री की, ये अच्छी वाली करते हैं। हाँ, तो आप इनसे कोशिश थोड़ा चल यहाँ रही पर है। वो भी शायद बात हो जाए बेस्ट। बेस्ट। You know, for me such a great thing that has happened on this table is इतने टैलेंटेड लोग हैं और हर फील्ड हमने कवर कर लिया है ना। एक्टिंग कर लिया है, कंटेंट क्रिएशन भी कर लिया, डांस भी आप करते हो, कॉमेडी कर लिया, राइटिंग कर लिया, पोएट्री कर लिया। लोग जो बचपन में सोचते हैं ना कि हमको इस फील्ड में पैसा नहीं है, ये देखो कितने पैसे हैं। नहीं तो वो सही सोचते नहीं है। अच्छा, ये तो नहीं, मैं अभी I refuse to believe that. जो करियर घर वाले करने के लिए मना करते हैं वो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। Exactly. और मुझे तो यही लग रहा था कि कितने करोड़ है इस टेबल पर। ऐसा बताओ। मेरी मैथ्स बहुत खराब है। खराब कर दी। इतनी खराब हो गई मैथ्स कि पैसे गिनने नहीं पा रहे। Before we actually get into the main conversation, हमारे एक entertaining सा round है. It is a game of firsts. So just pick up a chit and tell us your first, and everyone can join. I'll start? Yeah, you start. First paycheck. Interesting. Interesting. Because she was like, yeah. हम लोगों को जलील करो ऐसा। First paycheck because she has to think like, was it 2? Was it 3? That's what? Exactly. Yeah, that's exactly why I said interesting. It was genuinely when I was, I think, 3 years old. Wow. Yeah, it was for an ad that I did. It was for a cough syrup. But I know कि वो 8,000 का check था. 3 साल में तो 8 गिन नहीं पाता। It is, but Nice, interesting. nice. Yeah. Very nice. But I'd love to hear from all of you also. आप लोगों के first paychecks, मतलब 3 पे तो मुश्किल होगा, but अब तो शर्मिंदा ही हो रहा है। बताओ यार। Mine was, I think, so I'm from a financial background, and I'd done my first internship with a very small company when I was studying. So I think they used to pay me like 5,000 rupees per month. I think that's when I started. not bad. मैं 16 साल का था तब मैंने एक सीरियल किया था फॉर अ लोकल टीवी चैनल। Oh wow. इट वाज दूरदर्शन उर्दू। तो उसके लिए 2 दिन का शूट था, 750 रुपए पर डे और 1500 रुपए
और 1500 का चेक मिला था, चेक मिला था प्रॉपर। हाँ, सो मेरा एक्चुअली मैंने कॉलेज में मुझे आई थिंक फर्स्ट 1000 रुपीज का मुझे मिला था। हमने गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर ना पूरा प्ले किया था स्किट में। सो हमें उस स्किट के लिए 11,000 मिला था, उसमें 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो 1 करके एंड एक शायद टीचर ने लिया होगा। सो या फर्स्ट 1000 रुपीज का मुझे वो मिला। How old were you when you? No, it's the first year actually college में। I think I'm 18, हाँ 18। We have more First financially adult decision. I don't know if this was an adult decision. Of course, I have done CFA, but I was not very confident about investing my money in, different places. Firstly, the main thing is my dad had taught me that you have to be so independent in life that whether you have a life partner or no, you can take the decision on your own to leave and live by yourself. fantastic, yeah. So this is something he'd always instilled in my head. But then when COVID hit and I decided to make a video, I spent 2,000 rupees on my first tripod, which I still have because I have a Connect to it. It's my first ever tripod I shot with. I think that's the first time I used my own money, and I decided that I'm never going to ask my dad for more money. Oh, and look how it's literally paying off. I still shoot with it, by the way. Superb. How lovely. First financially adult decision. कैमरा लेना, मैंने वो ब्लॉगिंग कैमरा था सोनी ZV-1 का मैंने लिया था। एंड आई थिंक मुझे तो कैमरा से पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्यार था, क्योंकि मुझे बहुत सारी इनसिक्योरिटीज रही है अपने लिए। तो कभी भी ना इतना नहीं, मुझे ये सबके साथ होता है कि जो भी अच्छा फोटोग्राफर होता है ना, उसकी खुद की कभी अच्छी फोटोज नहीं आती। तो मैंने ये चीज देखी कि मैं बहुत अच्छी फोटोज लेती हूँ, बट मेरी कभी कोई अच्छी तो नहीं, उसके लिए अच्छे दोस्त बनाने पड़ते हैं। एक प्रॉब्लम है। या तो मुझे वो खुशी इतनी अच्छी मिलती थी कि किसी की जब अच्छी फोटोज मैं उनको दिखाती थी कितनी सुंदर आई है, तो वो जो चेहरे पे जो स्माइल मिलती, वो तो मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छा लगता है कि किसी को आप एक सुंदर तस्वीर गिफ्ट कर रहे हो। या How old were you? ये तो अभी आई थिंक 20 आई थिंक। Financial adult decision was to get a job. I mean, point है, fair point. मैं जेन्युइन बोल रहा। तो क्या हुआ, मैं जब कॉलेज में था, मैं इधर उधर कॉमेडी कर रहा था, ये कर रहा था, तो दे रेडियो ऑफर्ड मी अ जॉब, दे लाइक गेट अ जॉब, बट द पे वाज वेरी लेस, इट वाज एक्सट्रीमली लेस। बट आई वाज थिंकिंग कि इंजीनियरिंग में तो इतने भी कोई नहीं देने वाला वैसे भी, क्यों? जिस हिसाब की मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग। बट लेकिन वो जो मैंने जॉब ज्वाइन करी एंड 2 years आई लाइक earned a little bit of money, it gives you immense confidence to pursue whatever art you want to do. ब्रेक लेना है 2 महीने, you can take the break only if you have money, वरना तो आपको रगड़ना ही पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, तो व्हेन यू टुक दैट जॉब कॉलेज के टाइम पे आपने लिया, डिड यू टेक इट knowing that, was it a decision you were taking only for yourself, या फिर ये सोचकर कि यार फैमिली के लिए मुझे अभी जल्दी शायद बड़ा होना पड़ेगा? ये सब मेरे को लगता है थोड़ी सी बड़ी बात है कि फैमिली के लिए कुछ करना है। आई वाज वेरी यंग टू डू एनीथिंग फॉर माय फैमिली, आई वांटेड टू डू इट फॉर मी। कि मैं भाई आई स्टूडेंट्स, मैं जब रेस्टोरेंट्स में जाता था तो आपको मन तो याशी करने का है ना, लेकिन पहले बचपन में वो होता था कि थिएटर में खाना नहीं मंगाते हैं, बहुत महंगा होता है, मैं मंगाता हूँ। मुझे मन करता है बड़ा टॉप पॉपकॉर्न वाला टब खरीदने का। मैं अय्याशी करना चाहता हूँ जीवन में। माय इकिगाई में मेरा इकिगाई अय्याशी है। द ओनली थिंग व्हिच इज स्टॉपिंग मी इज मनी। लेट्स सॉर्ट दिस आउट। फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं, आप कूल भी नहीं हो। तो इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को घर वालों के लिए कुछ करना है, वो तो इवेंचुअली कर ही दिया और हो ही गया। लेकिन जो फर्स्ट थॉट आता है पैसे का, मेरे हिसाब से पहला थॉट ही होता है कि भाई अपना ठीक करते पहले। नहीं, बिल्कुल सही है, सबके अलग अलग होते हैं। Because my mom had been always handling everything, buying me the things that I need. तो मेरे लिए like getting a phone और वो सब, तो मतलब that is not when I realized कि this is like the decision I'm making. I think for me it was getting an insurance for my sister and my mom. Oh wow. A term plan Very sort nice. of a thing. That's हाँ, very I think that was my decision कि okay, like we think about our parents like not being there at one point. What if I am like, anything can happen, right? So like if I'm not there, I want my mom and my sister to be like completely financially secure if I'm not there. And I think that is the decision that I took. And it was very recently, I was 22 when I bought a term plan for my mom and my sister. Sweet. Yeah. Oh, वाह, first वाह, gift to parents. Yeah, this is, I think मैंने अभी पहली बार
मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं स्टार्टिंग से रहा है कि ना कभी भी पापा मम्मी हमें कभी ना घुमाने लेकर ही नहीं गए, और घुमाने के नाम पे वो नानी के घर मामू के घर लेकर जाना। अभी मैंने रिसेंटली अपनी मम्मी के बर्थडे पे उदयपुर का पूरा ट्रिप करवाया उनको, पेरेंट्स को। तो दिस इज माय फर्स्ट, आई थिंक मैं अपने पैसों से मम्मी पापा को घुमा पाई। यार मैं भी वही सेम, मेरा ही वही था कि ट्रिप पे लेके गए मम्मी को अभी रिसेंटली, और शी इज एंजॉयिंग अ लॉट। मतलब बहुत मजा आया उनको, दुबई लेके गया था। तो बचपन से जब भी वो ऑफिस जाती थी तो मैं से रैंडम पूछा था कहाँ जा रही हूँ, कह रही हम फॉरेन जा रहे हैं। तो उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कराई तो बड़ा मजा आया उनको भी। लाइक वो दुबई में आपको सबसे पहले दुबई ले जाना चाहिए घर वालों को, कहीं ले जाना तो उनको लगता है कि बच्चे पैसे तो कमा रहे हैं अच्छे, क्योंकि वो शहर अमीर है। जैसे आपको जैसे हाँ श्रीलंका वगैरह ले जाओ, उनको लगेगा नहीं अभी चलो कर रहा है लड़का, अभी कर रहा है। दुबई ले जाओ तो अरे वाह, उनको लगता बस बुर्ज खलीफा में इसी का ऑफिस है। फर्स्ट परचेज दैट मेड यू फील इंडिपेंडेंट। आई एम येट टू मेक दैट परचेज। नहीं, बट मुझे लगता है कि मम्मी को रिटायर कर, परचेज नहीं है वो, बट आई गॉट माई मॉम रिटायर्ड रिसेंटली। दैट इज वेरी नाइस फॉर मी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन हर सुबह उठ, मेरी नींद खुलती थी एंड शी इज ऑलरेडी लाइक उनके नहा के तैयार होकर ऑफिस जाने के उसमें होती थी। वो 30 साल से एक बोरिंग जगह जा रही थी तो वो है, तो व्हेन आई गॉट हर रिटायर्ड दैट वाज द बेस्ट थिंग। हाउ डज शी यूज हर टाइम ना, अभी क्या करती हैं आप? मेरे को डांटती है नहीं, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज एंड बुक्स एंड ऑल, तो शी इज जस्ट चिलिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, like scolding me in the restaurant. मेरा ड्रीम है मुझे पापा को बस हाँ ये होना है। Like even something similar, like in the middle I wanted to go to one school, you know, where the fees were a little heavy. My dad used to work with my grandfather, the factory which like shut. And then he learned on his own and he was a real estate consultant. And like he met a friend and he actually burst out crying saying that, you know, I do not have money to send my daughter to the college she wants to go to. And actually I was not aware of that. But when I got to know about it, like maybe a year later or something, it was so disheartening that he really wanted me to go there, but he just couldn't because he didn't have the finances. Of course, I didn't end up going there. Tables turned for me. But that's when I kind of realized, I was like, I want to get to this point where, you know, he doesn't feel that he does not have the money to do something. And eventually my brother started his own little cafe. I got into content. And I think that's when my dad got a little, you know, he was like, okay, Abhi, I think they're a little settled. And they don't have that pressure ke, haan, like, I have to do this for my child, I have to do that for my child. पर मुझे अभी भी लगता है कि ना उनको समझ नहीं आता एक बार जब that when they reach that position where they are financially independent because the children are earning, Yeah. उनको समझ नहीं आता क्या करना है। Yeah. Because अब मैं बोलता हूँ मम्मा को कि आप खरीद सकती हो अपने लिए चीजें। Exactly. उनको एक लॉजिक ही समझ नहीं आता। Because when she has to go outside, she's still thinking I want to do this, and she's keeping herself last. And I'm always like, but why? Now we are all earning. You don't need to worry about this. Buy something for yourself. She's racked with guilt. They don't know how to enjoy that independence probably because they've also gotten it so late in life. Yes. बिकॉज मैंने मेरी मम्मी को जितना भी मैंने उनको देखा, मैंने उनको सिर्फ कैलकुलेशन करते हुए देखा है। एवरी टाइम उनके दिमाग में कैलकुलेशन ही चलता रहता है कि अच्छा ये 5,000 उधर जाएंगे, अच्छा 10,000 इस EMI जाएगी। तो व्हेन आई सैट हर डाउन आई एम लाइक बंद कैलकुलेशन, अब हो गया सॉर्ट, अब कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की। वो बहुत बेस्ट फीलिंग है। वो यार इट्स सो नाइस टू सी लाइक सच एन इमोशनल, सबके यहाँ पे टेबल पे सब पेरेंट्स के लिए कितने अच्छे से प्यारे प्यारे इमोशंस हैं। मेरे घर पे एक पापा की बाइक हुआ करती थी एंड एक टाइम मुझे याद है कि सडनली एक दिन वो बाइक गई और बहुत कूल बाइक थी, अब याद नहीं कौन से ब्रांड की थी बट बहुत कूल बाइक थी। एंड सडनली अगले दिन एक स्कूटर आ गया एंड मैं वही पूछा ये बाइक क्यों गई और स्कूटर क्यों आया, मतलब ये कोई उल्टा लॉजिक लग रहा है, कूलनेस में तो बाइक बाद में आती है एटसेट्रा। एंड देन माय मदर टोल्ड मी अरे पापा को भेजने थे पैसे अपने पेरेंट्स को और हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं तो बाइक बेचनी पड़ी और स्कूटर सस्ता होता है। अच्छा ऐसा होता है क्या? सो टिल देन आई डिड नॉट नो दैट मनी एक्चुअली इन्फॉर्म्स सो मच ऑफ लाइफ डिसीजंस। एंड ये मैं मतलब 4-5 साल का हूँगा बट मुझे अभी भी याद है कि दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग्स दैट आई हैड कि पैसे से चीज़ें आती हैं जाती हैं, लाइफ चेंजेस, यू नो क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस। सो व्हाट वाज योर first understanding of money? There was a word I used to hear a lot घर में, hand to mouth. बहुत सुनती थी मैं ये और मुझे समझ में नहीं आता था होता क्या है hand to mouth. My mom has raised me and my sister all alone. So she was the only one who was actually figuring the finances out. She was the one who was earning and I was from whatever I could बचपन में could help her. तो वो मैं बहुत सुनती थी hand to mouth. तो तब मुझे realize होने लगता था कि okay this is
money is important. Even today, touch wood, like our situation and everything is touch wood decent, good. But today, even today, वो 200 रुपए का वो करती हैं हिसाब, because she's so inherently so worried and so like वो her muscle memory is to just save money. I've seen her like save that kind of money, take the bus instead of an auto, all those things. So I think from there तो I understood कि हाँ वो hand to mouth है और वो एक financial insecurity है, वो सब है, but official understanding मुझे काफी late आई. I'm happy to hear that. Obviously, that you're all in a good place right now. What about you guys? But I think the first time when I earned money, I think it was in office or something, and then I went somewhere, and I think like 1,000 rupees got stolen or something, and I came home and I was crying a lot. So like my parents asked like what happened. I was like 1,000 rupees, like it just like got stolen. So they were like it's okay, it's fine, and I was like no, like it was like my hard-earned money, like that's when I think I properly realized like what it feels like, because otherwise it was just like 10 rupees, हाँ चलेगा, let's just go buy this. What I found so interesting in that is कि actually पहली बार आपको पैसे की वैल्यू तब समझ आती है जब आपसे कोई चोरी करने लगता है. Yeah. If someone takes your hard-earned money, then you realize it's hard-earned. तब तक तो जो खुद spend हो रहा था तो you don't realize कि hard-earned है कि नहीं है. तो मेरा रिलेशनशिप तो ये था, मेरी मम ऑफ कोर्स सिंगल मदर है, तो मेरे घर में मैं था, मेरी बड़ी बहन थी और मम्मी थी. तो घर का मेरा मनी से रिलेशनशिप, घर का स्टेटस कोई यही था कि नहीं है पैसे, क्योंकि सरकारी और नौकरी में जो लोग रहते हैं उनका, क्योंकि वो मन टू मन चलते हैं, तो सेविंग का कोई कल्चर है नहीं. तो मेरी मम्मी का था कि ऑफ कोर्स फाइनेंशियल चीज़ें बहुत खराब थी, बट मम्मी का था कि बच्चे स्कूल अच्छे जाएंगे. मतलब मेरी मम्मी की तनख्वाही तब 4-5 हज़ार रुपये होती थी और 800-800 रुपये फीस हम दोनों की और एवरीथिंग. लेकिन अब मैं जिस स्कूल में जाता था वहाँ तो अमीर के बच्चे आते थे. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम ऐसा रियलाइज़ नहीं होता आपको स्कूल्स में, एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके बगल में आपका दोस्त है वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से आता है, यू डोंट माइंड. बट व्हेन यू ग्रो अप, लाइक आप 7th-8th में हो जाते हो, यू स्टार्ट गोइंग आउट एंड हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स. तो यू रियलाइज़ कि आपके ग्रुप में 4 लोग हैं और 3 का बर्थडे पिज़्ज़ा हट में, डोमिनोज में, मैकडॉनल्ड्स में मन रहा है. तो फर्स्ट टाइम आई रियलाइज जेन्युइनली नो, हम 4 लोग, भोपाल में पहला मॉल खुला था, एवरीबडी वेंट टू द मॉल, मैकडॉनल्ड्स में होके आए, उसके साथ फोटो खिंचा के वो अंकल, क्या है उसका नाम, रॉनल्ड मैकडॉनल्ड, वो अंकल के साथ वो भोपाल में आ गया. वो अंकल हमारे बाहर मैकडॉनल्ड्स में डीबी में, तो हम लोग सब फ्रेंड्स लोग 4 लोग गए साथ में डीबी, एंड उनने जो मंगाया और मैंने जो मंगाया, उस दिन मुझे क्लास डिफरेंस पता चला. फिर मेरा जीवन में मोटो रहा कि मैंने कहा सबसे पहले पैसे सॉर्ट किए जाएंगे, उसके बाद जीवन देखा जाएगा. तो मेरा ये रिलेशनशिप था. दैट आई मस्ट हैव बीन इन 7th or 8th. देन आई रियलाइज्ड ओके लाइफ इज डिफरेंट. जिंदगी में अलग अलग लोगों की अलग अलग जिंदगी होती है और उसका बहुत ज्यादा पैसों से लेना देना. मेरा भी एक्चुअली सेम ही. मैं तो मेरे लाइफ में आया गुल्लक से, वो जो मिट्टी के गुल्लक में जो हम लोग पैसे रखते थे, क्योंकि मुझे पता था कि पापा ने हमेशा ना मुझे ये समझाया कि अगर तुम्हें कुछ भी लेना है तो सेव करो, पैसे जमा करो एंड देन लो. क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा पापा ये चाहिए मुझे एंड देन ही ब्रिंग्स पैसे लेकर आएंगे, वो मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ. तो यही था. मैंने मम्मी को देखा था घर में किचन में ऐसे स्टील के या बॉर्नविटा के डिब्बों में पैसे भरते हुए या कुछ बचाते हुए. तो मुझे भी ये तो मेरे अंदर आ गया था कि सेव करना है. तो जो भी लंच में के लिए कभी कभी मम्मी पैसे दे दी थी तो उसको सेव किया, गुल्लक में डाला. एंड देन कभी कभी ऐसा होता था कि वो मुझे ना गुल्लक से इतना ज्यादा फैसिनेशन था ना, मतलब वो कुछ वो आते थे लॉक वाले, तो उसमें ना तुरंत पैसे निकल जाते थे. तो वो वाले नहीं चाहिए. वो हमें वो मिट्टी वाले आते तो उसमें पैसे निकलना मुश्किल था. तो वो हम लोगों को लॉन्ग टाइम तक सेविंग चलती थी मेरी. तो और जब वो फूटता था तो वो खुशी जो मिलती थी कि अरे इतना सेव कर लिया है, वाह यार. मेरा तो ये आप लोगों को सुन के इनफैक्ट एक मेमोरी जो आ रही है मुझे, मैं था रायन इंटरनेशनल में एंड इट वाज दिल्ली में 1 साल पढ़ा हुआ मैं रायन इंटरनेशनल में गया था. एंड अगेन वहाँ पर सारे एक स्टार्टअप के लोग आते हैं और मैं उस स्टार्टअप में नहीं था, मुझे जो पता नहीं था कि ज़माने अंटिल किसी का बर्थडे आया और वो दुबई से चॉकलेट लाए, ठीक है ना. तो वो मतलब फॉरेन के चॉकलेट आए वहाँ पे. मुझे ये था कि ये चॉकलेट मुझे कभी, बिकॉज दैट गाय ऑल्सो गिविंग, ही वाज गिविंग इट ऑलमोस्ट इन अ वे दैट मतलब एहसान कर रहा हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए दुबई से जाओ. आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज, वेदर इट वाज द फैक्ट दैट आई वांटेड 2 चॉकलेट्स और इट वाज द फैक्ट दैट आई वाज लाइक ये क्यों, मतलब फॉरेन का चॉकलेट मेरे पास नहीं है. बट मैंने एक और उठा लिया, ठीक है, उसके बैग से. और उसके अपेरेंटली लिमिटेड चॉकलेट्स थे, सो देयर वाज ओनली लाइक एक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स. एंड देन व्हेन द चॉकलेट्स गॉट ओवर, उन्होंने कहा कि एक तो मिसिंग है. और फिर टीचर ने पूरा एक मिसिंग कैसे हो सकता है, तो समबडी हैज टेकन 2. एंड देन द टीचर एंड शी आस्क्ड कि किसने लिया है. मुझे अभी भी याद है, मतलब मैं क्यों बोलूं मैंने लिया है, मैं कह रहा था कि पूछेंगे फिर नहीं होगा तो बोलेगा किसने गंदी बात की. बट शी डिड अ बैग चेक, हर इंसान के बैग का निकला, और क्या निकली क्यों नहीं निकली.
So then they came to me and then मैं तो बैग नहीं दे रहा. इसी वजह से मैंने कहा मैं तो बैग नहीं दूंगा. This is privacy intrusion. 5 साल का लड़का बोल रहा है. फिर क्या? फिर समझ आ गया उनको कि इसी के बैग में. फिर निकाली बैग में. फिर वहाँ से पेरेंट्स को बुलाया मुझे. और मतलब उस ऐसे करके कि तुम्हारा बेटा चोरी करता है. चोरी की मतलब एक एक्स्ट्रा चॉकलेट दिया, इसमें चोरी का क्या है? एंड सच अ स्मॉल थिंग. मतलब प्रिविलेज, अपॉर्चुनिटी, सारी कॉन्सेप्ट वहीं शुरू हो जाते हैं. इवेंचुअली वी आल्सो एंडेड अप गोइंग टू द मिडिल ईस्ट, सो आई वन. आपको पता चल गया कि वो दुबई चॉकलेट स्कैम है. हाँ, मतलब वो जो भी है ठीक है, वो नहीं पता है यहाँ पे हम लोग, बट ठीक है. हाउ आर यू, especially as people who are in a field जहाँ पर मतलब stability in that sense hopefully सबके पास रहे, but there are days जहाँ पर बहुत पैसा आ जाता है and there are days जहाँ पर और months जहाँ पर थोड़ा कम आ जाता है. It depends on so many. It's a seasonal thing, right? When you're freelancing and you're not in a, you don't have that monthly income coming in. How do you all also plan your savings investments? How do you look at money from that perspective कि हमेशा you don't have to worry about a bad day? When I started थोड़ा अर्निंग मनी तो जाकिर भाई ने मेरे को बढ़िया अच्छी है. जाकिर भाई और तन्मय भाई आर माय लाइक गो टू गाइड्स. Perfect. दोनों ऐसे हैं कि दोनों एग्जाम साफ बता देते. तो मेरे को जैसे ही हुआ मैंने कहा यार कार ले लेते हैं. ये मैं सुना चुका हूँ. मैंने कहा कार ले. दूसरे महीने ही मैंने कहा यार भाई इतने आ गए, इतने डाल के कार ले लेते हैं. कह रहे कुछ कार वार नहीं आ रही है. मतलब मैं ऑलमोस्ट जाकिर भाई के पास प्रपोजल लेके गया था कि ये ले रहे हैं अपन कार. मैंने कहा कोई कार नहीं आएगी 2 साल तक फॉर्म में. मैंने कहा क्यों? कह रही है अभी तुमको 2 महीने लग रहा है, 6 महीने कुछ नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? फिर तुम फालतू काम करोगे, घटिया काम करना पड़ेगा तुमको. कह रहे जब एक बार आ जाए उसके बाद तो फिर मैं 2 साल के बाद अपनी पूरी, मैंने उनको मंथली स्पेंड, मंथली इनकम भाई इतना आ जाता है और इतने में मेरा चल जाता है, अब ले लूँ क्या कार? कह रहे अब ले सकते हो. तो वो आपको करना पड़ेगा बिकॉज फ्रीलांसिंग में बहुत ऊपर नीचे मामला है. यू कैन नॉट हैव एनीथिंग फॉर 2 months एंड लाइक आपको भी यू ऑल्सो नीड अ ब्रेक ना ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट. यू कांट कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट एवरी मंथ. मनी विल नॉट कम दैट मंथ, बट आपको बाकी महीनों में इतना अपना महीने का इनकम फिगर आउट करना पड़ेगा. इट्स नॉट योर सैलरी. यू हैव टू मेक एन एवरेज कि भाई 3 महीने में एवरेज कितना पैसा आता है, उस हिसाब से मेक योर एक्सपेंसेस. Again over here freelancing में कभी कभी after doing the work also पैसा आता भी नहीं है कभी, so you have to be prepared for the worst. Again like our parents have always taught us, savings है तो you can like even if there's a bad day you need to have so much money कि you can spend it for yourself. You can survive basically that way. पहले से ही only dad ने सब term insurance, PPF, FDs, PMS सब already करके रखा हुआ है. So there's nothing like he's told me in all these things. No, once the money is gone, just assume, just forget about that money. ये बिकॉज टर्म इंश्योरेंस की 2-3 बारी बात हो चुकी है, ये तो बचपन से करा रहे हैं. सो द IPQ 6.0 also says something very similar to what you said. 73% of Gen Zs believe they are proactive in financial planning. They're becoming more aware year on year about term life insurance. It's increased from 63% to 69%, which is a significant increase. Will you just explain, as someone who actually has a financial background, what is term insurance? Why does everyone take it as one of the first things that they do? Term insurance is like a, in like very simple words, it's like a life insurance. It's a protection for your family. For example, if you're like an earning member of the family and tomorrow something happens to you, at least they have that cover. Also, it's done at a very affordable rate. Like the premiums are extremely low. It can be like even 500 to 1,000 rupees. So it's better to have that lifelong cover at least for your family. First actually financial product I bought was also term life. It just so happens, and you know, it's not a plug. It really genuinely was something that I wanted to buy for my parents, and you know, they had bought something for me in the past. But for, what was the reason for you all is what I want to know. Whatever we do in life, we do it for our family, our parents. Family is the only thing. हम लोग क्यों ही सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं? ये अकेला आदमी तो ब्रेड खा के भी जी लेता है, लेकिन पैसा ही कमाते क्यों है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे फैमिली के लोग जिन्होंने अपनी लाइफ हमको दी है. मेरी मम्मी ने अपनी पूरी जो जिसको आप सो कॉल्ड जवानी देते हो वो हमारे लिए टिफिन बनाने में डेडिकेट कर दी. तो हम इतना तो कर सकते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ हमारे जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो एटलीस्ट शी हैज़ अ बेटर टाइम इन हर लाइफ, जितना भी उनका टाइम बचा हुआ है. तो इसीलिए लेता है टर्म इंश्योरेंस कोई भी इंसान कि भाई एवरीथिंग इज फैमिली, एवरीथिंग इज आवर पेरेंट्स, सो यू हैव टू डू इट फॉर देम. दैट्स द ओनली थिंग. For me, it's because my mom was always very pro getting insurances and policies and term plans and stuff. So it comes from her.
because her ideology and her philosophy all this while was कि एक insurance होनी चाहिए या और it's not just health insurance and term plans that she's bought stuff like for me also when I don't understand so much of it, to be very honest, like it's all her, she's bought all of it, she has the best knowledge, but there are some things like where when I turn 40 years old I will get some amount of money. Yeah. If we invest in that plan now. So I think it comes from there as well and just comes from my mother a lot. I think again it's family protection. My parents, my family, they all have been there with me since day one when I was going through hard times. They've always been there. So I think I also want to be there for them tomorrow, just in case something happens if I'm not there. At least I want them to be in a decent place where they don't have to be dependent on anyone else in this world. All of us have that emotional reason और एक genuine value होती है जो हम ट्राई करते हैं अपनी फैमिली को देना, उनको प्रोटेक्ट करके हमको अपनी वैल्यू भी वर्थ अपना वर्थ भी बढ़ जाता है, अपनी वैल्यू भी काइंड ऑफ बढ़ जाती है एंड इट्स सो लवली टू हियर ऑल ऑफ दिस, सो थैंक यू फॉर दैट. So according to India Protection Quotient 6.0, prioritizing the desires or aspirations of family and sustaining lifestyle expenses with earnings are two of the topmost anxieties in India. I know that when I'm growing up, my parents have sacrificed a lot for me, right? But when you are growing up, is that a constant thing at the back of your head also कि मुझे अपने parents के लिए भी कुछ करना है? I want to ensure. Is that a driving factor for the way you look at money? Yes, for me it is like I wake up with a morning anxiety of like not being able to fulfill because I've seen my mom struggle. I need to get my mother the best thing possible. She's a writer. I want her to have her own study room or her own library in her home, like stuff like this. So these are my constant struggle and worry that okay, am I fulfilling it? Am I doing this enough? And constantly like reassuring her कि okay, we will do this. We have to do this. You need to do this. We need to take a trip. So वो I think that anxiety very much exists even today. You know, I want to know because ये pressure क्यों बन गया है? I want to clear this out. The pressure is not from the parents also. Yeah, Right? sure. It is something that we take upon ourselves because it comes from the fact that we've seen them struggle. तो वो एक back of the mind वो है कि क्योंकि इन्होंने इतना struggle किया और ये हमारे लिए किया है, हमारे लिए इतना sacrifice किया है. Now it's time that we work very hard and give it back to them. But why have you put almost a time limit or time barrier to it? कि the sooner I do it, the better it is, or the better child that I am, you know? मेरा एक सबसे बड़ा जो मुझे अभी बहुत ज्यादा मुझे डर लगता है जिस चीज से, जब भी मैं देखती हूँ कि होता है ना मम्मी पापा को बूढ़ा होते हुए जो देखना, कुछ भी छोटी छोटी चीजें होती है जब मम्मी को पता चलता है कि फॉर एग्जांपल मेनोपॉज का फैमिली में मेरे पापा के हेल्थ इश्यूज भी देखे हैं और ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर, तो वो एक हमेशा प्रेशर रहता है कि यार ये बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, उनको कोई बीमारी कुछ भी डर हमेशा बना रहता है कि यार उससे पहले पापा के लिए मम्मी के लिए सिक्योर कुछ रख ले. You've seen your parents struggle, you want to do it for them, but I think it's a cycle. Like even they must have done it for their parents, you do it for your parents. It's just a cycle. मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला इस पे, मतलब मम्मी ने समझाया कि when I started earning, तो जब भी मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करता था जिसमें मेरे मजे हो रहे हैं या मैं आई एम गोइंग टू स्टे इन अ 5-star होटल या, तो मेरे दिमाग में हमेशा वो एक रहता था कि अरे यार मम्मी तो नहीं देख पा रही है. I used to feel guilty about having fun because my mom saw so much, so that लेकिन फिर I told this to my mom, so my mom was like, what is this emotion? This is a ridiculous, मतलब ये घटिया इमोशन है ये. मैंने कहा क्यों? कह रहे हमने इसलिए इतनी मेहनत करी है so that you go to Paris. You going to Paris is my enjoyment. So have fun. तुम्हारे फन को अफोर्ड करने के लिए हम ऑफिस जाते थे 8-8 घंटे और उसके बाद अब तुम परेशान रहोगे तो फिर क्या मतलब रह गया फिर? But has this helped you? Of course. This is I'm asking you, has this helped you? Because even today when क्योंकि आप शूटिंग के लिए जाते हो आपको मिलता ही है 5-star में रहना या जो भी, जैसे हमने वो याद है हम वो कहाँ गए थे बैंगलोर, क्या भाई वो देखा था तुमने वो हम क्या होटल में हम दोनों साथ में थे, वो क्या नहीं साथ में मतलब हम साथ में एक इवेंट था जिसके लिए हम लोग सब गए हुए थे. तुम्हारी रील्स पे कौन मतलब नहीं साहब वो नहीं डाउटिंग इट. वो होटल मतलब I think it was for me it was the best hotel I've ever lived in. Still. I was constantly calling my mother, FaceTiming with her कि look at how beautiful this is, why are you not here? तो and she was saying the same thing कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है.
no matter how cliche it sounds, but it is real for her. But for me, it doesn't work. My mom taught me properly. उन्होंने प्रॉपर बैठ के मेरे से कॉन्वर्सेशन करी, कह रहे हमारे जीवन की जो खुशियां थी वो हमने एंजॉय करी अच्छे से। तुमको ऐसा लग रहा हो कि हम परेशान थे, लेकिन हमारे जीवन में भी खुशियां थी। मेरी मम्मी कब बोलेगी ये जो- मुझे? ये नहीं बोल हम रही लोग ना हमें। अपने आप को जो मेन कैरेक्टर एनर्जी, बोला। हम लोग अपने आप को जो मेन कैरेक्टर एनर्जी मान लेते हैं ना, कि जो हम हमारे माँ बाप के जीवन में कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, हमारे बिना हमारे माँ बाप कुछ नहीं है। मेरी मम्मी ने बोला बेटा हमने अपनी जीवन जिया है, हमने अपने जीवन के इंजॉयमेंट, खुशियां, जितने उत्साह थे सारे कर लिए। तुम अपने जीवन में अपने उत्साह एंजॉय करो जो तुम्हारी किस्मत में आ रहे हैं। डोंट डिसरिस्पेक्ट द डेस्टिनी, एंजॉय इट। बनी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। No, it's lovely and मुझे actually after you said this मुझे एक question आ रहा है कि do you remember a time जब आपके पेरेंट्स ने आप पे भरोसा दिखाया और खुद से बोला चलो तुम स्पेंड कर दो, which I think is always a very big moment in the life of every child. Any time when your parents started showing a little bit of trust and भरोसा in you? आई थिंक जब उन्होंने मुझे ना अकेले रहने के लिए परमिशन दे दी थी, आई थिंक सबसे बड़ा चेंज मुझे लगा कि यार बहुत मम्मी पापा का है कॉन्फिडेंस मुझ पर कि कर लेगी ये, तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था जब मैं पहली बार बॉम्बे आई थी उनके लिए वो शो करना कि अकेले रह लेगी। एंड द सेकंड थिंग, जब मैं वापस दिल्ली भी आई तो दिल्ली में रहकर मैं उनकी फैमिली के साथ नहीं रही। दूसरे शहर में रहकर अलग रहना तो मम्मी पापा को लगता है कि ये तो जरूरी है, बट उस शहर में रहकर ही अलग रहना, आई थिंक ये जब पापा ने शो किया मुझे कि नहीं हो जाएगा, उसको अपना डिसीजन लेने दो, उसको अलग रहना है, तो आई थिंक दिस इज द मोमेंट। मेरे लिए तो तब था जब, बिकॉज हमेशा से मम्मी फाइनेंसेस हैंडल करती थी, तो जब मुझे करने का वो दिया कि ओके तुम करो, तुम मुझे समझाओ, यू टेल मी वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम और वेयर इट्स गोइंग, आई थिंक दैट ट्रस्ट दैट शी शोड इन मी कि ओके नाउ शी इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ओके शी कैन हैंडल हर ओन फाइनेंसेस, वो आ गया था मेरे अंदर। आप बताओ। This year I took them like to the United States of America and they were like extremely happy, they enjoyed it. I was like just live to the fullest. I just told my parents that don't think about anything, don't have that pressure of anything, just like enjoy. I think till date dad will still put up that one statement कि why you are spending, let me spend, but eventually he understood. Like right now also कुछ भी होता है ना, for example like if he's paying for something he'll message me on WhatsApp कि I have given 100 rupees to this, 200 rupees to mom. I get so irritated, like as if I'm his client or something. He's updating me, like Unrelatable. मेरी मम्मी तो 2 लाख रुपए भेज दो। क्यों? तुमसे मतलब? अरे हद हो गई भाई, ये कैसी बात हुई यार। She can't save to save her life. उनको आप कितने भी रुपए दे दो, 2-3 हफ्ते बाद उनका हो जाएगा कि अरे यार थोड़ा दिक्कत तो है, अरे दिक्कत, तो उनका वही रहता है जल्दी भेजो। बेस्ट है। बट पहली बार उन्होंने कब भरोसा दिखाया? तो हम लोग सरकारी नौकरी वालों में, क्योंकि वो हैंड टू माउथ जो बोल रहे थे, लिटरली जेन्युइनली वही होता था कि 20 तारीख के बाद नहीं बचता था पैसा, क्योंकि खर्चे इतने हैं और ये वो। उनको था 1 तारीख को पैसा जाएगा, लेकिन 15 तारीख के बाद गरीबी चालू हो गई, तो सेविंग्स कुछ नहीं करी। तो व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, और फिर मैंने बचपन से इन्वेस्टिंग करनी, मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ ली थी, और मैंने कहा कि भाई ये चीज़ तो करनी है। और तब आपको बचपन में आपके स्पेंडिंग्स भी कम होती हैं, तो आप आराम से सेव कर सकते हो। मैं सेव करा 2-3 साल, फिर मैंने उनको बताया कि ये महीने के इतने सेव किए थे और ये अभी इतने हो गए हैं। तो उनको लगा कि ओह ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला लो ये अलमारी की चाबी, ये आपका हुआ आज से। इन्वेस्ट दिस मनी वेयरएवर यू वांट। Sweet. Superb. So according to India Protection Quotient 6.0, there's a significant increase in savings product ownership that's gone from 28% to 35%, which again shows that there is an awareness, चाहे धीरे धीरे बढ़ रही है, बट बढ़ रही है। और एट द सेम टाइम वी आर नॉट जस्ट सेविंग, वी आर ऑल्सो स्पेंडिंग, लिविंग लाइफ। हमारे में तो हमको तो कभी ये बातें ही नहीं होती थी, जो ये एंग्जाइटीज है हमारे लिए जिंदगी थी, ठीक है यार। अगेन एंड आई एम टेलिंग यू, ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम, इतना मतलब प्रिविलेज तो है कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने खुद के लिए अर्निंग कर ली है। मुझे उनके लिए अभी इतना, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर रिटायरमेंट, तो वो गिल्ट है, दैट्स वेयर आई एम ट्राइंग टू हेल्प एंड से। हर साल बिफोर कोविड, वन ऑफ द थिंग्स आई एम प्राउडेस्ट ऑफ इज दैट एवरी न्यू ईयर्स I took my parents to a different country. मैं कहा मैं लेकर जाऊंगा, but the savings was not something that I understood कि ये मैं पहले करता और मेरे पैसे खत्म होते जा रहे थे। तुम लोगों को I think ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ये। Have you been like a little bit more proactive about financial planning? एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि उस टाइम में मम्मी पापा, जब पापा की एज में, वो लोग हमेशा जमीनों में इन्वेस्ट करते थे उस टाइम पे।
तो अब अभी हमारे जनरेशन के लिए जमीनों में इन्वेस्ट करना हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं वही सोच रही थी कि यार ये कैसे कर सकते हैं। तो मुझे तब फाइनेंस का पता चला कि जितनी अर्ली एज से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, बेशक आप 1000 डाल रहे हो 2000, बस वो मंथली आप कर रहे हो तो आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है आफ्टर 30 ईयर 40 ईयर लॉन्ग टर्म में। तो वो आई थिंक ये मेरे लिए चेंजिंग मोमेंट था। हमको 35 में भी मजे करने हैं, हमको 40 में भी करने हैं। तो अगर हम 25 में सेव नहीं करेंगे तो 40 में मजे कैसे करेंगे? तो Gen Zs are delaying their jawani a lot. So you'll see Gen Z enjoying a lot their life, and to do that we have to save and invest. We know that. When I saw during COVID, I saw families around me shatter. Like it's the money the money doesn't exist. दुकान बंद हो गई, कोविड में दुकान बंद हो गई, अब कहाँ से आएगा? आप पिछले 20 साल से आपको लग रहा था कि दुकान में इतना पैसा आता है, आपने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज गई एक दिन। तो when I saw that, I'm like ये तो बहुत स्कैरी है भाई, ये बहुत ही स्कैरी है। I saw people around me कि उनके बच्चों की फीस नहीं दी पा रहे हैं और वो स्कूल में they have been called out from the classrooms and all of that, and it's extremely bad for your mental health, for that confidence. A family who has economically crumbled, कैसे वो एक दूसरे पे फेथ रखते हैं, कैसे वो they get out of it, how bad it is for the kids and for the एक पेरेंट्स की एक वो सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना कि we'll provide for our family। अगर वो ही चली जाएगी तो फिर किस तरीके से सेल्फ आएगी? क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं अय्याशी में डिपेंड करता हूँ, मेरे को मजे भी करने जिंदगी के, लेकिन वो एक बैकअप नेट बनाने के बाद, वरना किसी भी दिन कुछ भी बंद हो सकता है। It's like how TikTok just got banned, right? Like a lot of people who were Yeah, earning yeah. through it, it just stopped. So you have to be ready for the worst. तो उसके लिए it's better to save अभी से। आप लोगों ने जो थोड़ा बहुत एटलीस्ट एट योर लेवल नाउ यू मैनेज टू अचीव सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट एन अर्ली एज, what advice do you give to anybody else who's either gotten there or is getting there to maintain it? For me, I think it's there are two words. One is savings, which is very important, and the second is diversification. You never can put the entire money in All your one, eggs in the same in basket. like one thing. It has to be diversified. Rainy day fund is very necessary. 6 months of your needs, कि आपका जो महीने का नीड्स का खर्चा है कि घर, खाना पीना, जितना भी बेसिक आपको लगता है विदाउट अय्याशियाँ, विदाउट एनीथिंग, उतना 6 महीने का बैकअप होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो गए हो तब की बात है ये, मैं सबको नहीं बोल रहा कि, लेकिन अगर आपके पास एक बार पैसा आ गया तो उतना तो होना चाहिए आपके पास, एंड यू शुड हैव गुड हेल्दी इन्वेस्टमेंट्स व्हिच यू हैव मेड, उतना मेरे ख्याल से काफी है। I also feel अगर even if it's a small amount, even if it's 2000 rupees, start today. ऐसे नहीं कि मैं 10,000 कमाता हूँ उसके बाद डालता हूँ। Even if it's like a lesser amount, you should start today. मैंने जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस सीखा है कि जितना हो सके उस पे एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट करो, और खासकर मतलब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा कर लो कि जिससे जल्दी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, बट लॉन्ग टर्म एजुकेशन में मुझे पता है बहुत टाइम लगेगा उसको अचीव करने में। बट क्योंकि मैंने तो बहुत जल्दी अर्ली एज से आई थिंक, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए सोशल मीडिया की हेल्प ली, क्योंकि वहाँ से जल्दी वैलिडेशन मुझे मिल गया, जल्दी से रिकॉग्निशन मिल गया, फिर एक अर्निंग सोर्स क्रिएट हो गया, एंड उसके चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई पे मतलब फोकस नहीं हो पाया। एक्चुअली मैंने अपने सोशल मीडिया से पैसे इकट्ठे किए क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई आगे की मैं अपने स्टडीज पे मैं खर्च कर सकूं। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक लाइक टू बी एबल टू फोकस ऑन अ स्किल बिल्डिंग, यू नो, एंड वो तो मुझे लगता है पूरी जिंदगी करना चाहिए आपने। एंड इट्स सो नाइस टू हियर दैट इवन आफ्टर यू हैव गॉटन दैट इनिशियल पुश बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, यू हैव टेकन द पंट ऑन योरसेल्फ इन अ डिफरेंट वे। बताओ। वही है कि even if you're financially independent and you feel like you're set, I think not taking that for granted and keep educating yourself when it comes to investments and savings and all of those things. I think वो बस एक वहीं सेट होके कि हाँ बहुत पैसा है सेविंग में रख लिया, अब कुछ नहीं करना। तो उसके बारे में, वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और सेविंग्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन और अपने आप को एजुकेट करके डोंट लाइक, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है एनीवे, तो थोड़ा नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वी स्टार्टेड एक हार्टफेल्ट नोट पे हमने शुरू किया था, एक डीप नोट पे शुरू किया था, बहुत प्यारे नोट पे शुरू हुआ था। मुझे एंड भी एक प्यारे और डीप नोट पे करना है। व्हाट्स द वन डिसीजन दैट यू हैव मेड टिल नाउ फॉर यू एंड योर फैमिली दैट यू आर प्राउड ऑफ, जहां तुम्हें लगा दैट यू आर द डिफरेंस? Deciding one day that I'll change this.
मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई डू एवरीथिंग बट आई चेंज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई फैमिली. दैट वाज अ वेरी फर्म डिसीजन. आई वाज लाइक कि आई कीप एवरीथिंग असाइड. मैंने बहुत टाइम तक नौकरी करी जो मैं नहीं करना चाहता था, और बहुत ऑड जॉब्स किए जस्ट टू मेक इट. इवन दो कुछ चीज़ें काम करती थी, कुछ चीज़ें नहीं करती थी, कहीं से आते थे पैसे, कहीं से नहीं आते थे, लेकिन दैट फर्म डिसीजन दैट फर्स्ट आई विल फिगर दिस आउट, फिगर द मनी पार्ट ऑफ माई फैमिली, देन आई विल फिगर एवरीथिंग एल्स. पहले ये सॉर्ट चाहिए. तो मेकिंग मनी द प्रायोरिटी वॉज द बेस्ट डिसीजन आई थिंक. कब हुआ था ये? Do you remember? Yeah, I was 18. We used to live in a very bad government quarter. The house was terrible. It didn't have natural light. My mom is a very nature-loving person. Like she loves natural lights. She loves like धूप सेकना और ये सब चीज़ें, और उस घर में हो नहीं पाता था. बहुत ख़राब घर था वो. And we spent like 11 years of our life in a very bad government quarter. So I used to be like I have to change this. And then like 18 years I decided that I'll change everything, and I did it. सेम एक्चुअली घर का बहुत बड़ा रीजन मेरे लिए ये रहा है कि आई थिंक बहुत सारे साल हमने इसी के लिए पापा ने मम्मी ने स्पेंड कर दिया कि अब उन्होंने बना दिया, बच्चे ही आगे ठीक करेंगे. एंड आई थिंक मैंने आसपास अपने नेबरहुड में देखा कि यार सबके घर के मतलब बिल्डिंग्स बढ़ चुकी है और अब वो सूरज नहीं दिख रहा है, मतलब वो धूप नहीं आ रही है अभी, है ना. तो ये मेरे लिए आई थिंक, और अभी फाइनली जो भी मैंने किया था, फाइनली अभी मैंने ये स्टेप किया कि मैं अभी रेनोवेट करूंगी. एंड आई थिंक अभी स्टार्ट ही हो रहा है रेनोवेशन अगले मंथ से. So, मुझे नहीं पता कि मैंने अभी कर पाया है नहीं, अब स्टिल वो पता चलेगा कि कितना खर्चा होगा अभी, बट स्टिल मैंने डिसीजन ले लिया कि अभी हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं. और वो मैंने अपने पापा को बोल के कि मैं करूंगी. मान गए तुम्हारे पापा वैसे? हाँ, वो तो मतलब कब सोच रहे हैं कि कब होगा, बट वो उनको भी भरोसा नहीं हो रहा. वो बोल रहे कि क्योंकि उनमें वो मुझे लगता है ना कि वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि अकेले वो डिसीजन नहीं ले सकते थे. बट जब मैंने बोला कि मैं करती हूँ ना स्टार्ट, देन ये हो जाएगा, फिर कर लेंगे साथ में. कितनी प्यारी बात है ना, कभी कभी पेरेंट्स को खुद एक्चुअली आप भरोसा दिलाते हो कि यू नो इवन पेरेंट्स समटाइम्स फील अलोन इन दिस प्रोसेस और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते. हम तो चलो फिर भी यू नो वी आर फार मोर एक्सप्रेसिव देन आवर पेरेंट्स. For me, it is, I think, so I have a skin condition named vitiligo, and my dad and my mom put in almost 10 years of their life into it, with doing different therapies and medicines and stuff like that. There was different food made at home. Mom had so much of work, extra work. Dad, he used to balance his office. Like when I was in school, he used to go to office. When I used to come back, he used to immediately take me to the doctor. We used to sit there for like 6 hours in the line. You know, like we did that for almost 8 to 9 years. And he would never stop it until I would tell him, because for him it was like I tried the best to, you know, cure this. But there was no scientific cure to vitiligo. So I think the best decision was when I went to him. I was in the 8th standard and I told him, Dad, can we just stop this, you know, and let's make life easier for all of us. And I think that was the best day of my life and their life, because we all were living freely. No one had any issues of कि आस्था को यही खाना, ये नहीं खा सकती है. Dad को ये नहीं issue था कि अभी I have to go to the doctor, I have to spend this money on this medicine. Like why? If there is no cure to it, I think like you literally live only once, so just like enjoy yourself and don't really stress about something which is not possible. So I think that was the best decision for all of us. वाह यार, वाह. How did you take क्या it सुंदर. at 8th standard? That's such a beautiful. I mean, like, I don't know. My dad just told me like he was just like he was chilling at home or something, and I went to Dad and I was like, Dad, can we stop this? Like we're all tired of this. Like, you know, literally my dad and I, we used to travel to like different like places all over India. You name the temple, I have been there. We used to like wake up at like 4. Like there was this like someone, and at that time whatever you tell the parent, that parent will believe it. So someone had told him to, you know, literally you have to sit on your own, make haldi and put it on her like white spots and it will get resolved. So every morning he used to wake up, he used to make the haldi ka that crushed thing on his own, he used to put it on my skin, and then when it used to dry up it used to be very hard. So he used to feel bad for that also, कि my daughter was going through this. But for him it was like whatever, even if God tells me ना कि तुम इधर जाओ, I will go there because I want her to be fine. So I think that was the best decision. unbelievable that you made it at such an early age. Wow, that's incredible. Yeah. I'm sure they're so proud of you. Thank you. How do I top all of this? भगवान भला करे मैं इसके इधर बैठा था भाई. हाँ यार. Oh God. टॉप नहीं करना है, कंपटीशन थोड़ा है. इसके बाद तो उन्होंने कैमरे भी बंद कर दिए. कह रहे मिल गया बस. क्लाइंट भी चले गए. कह रहे मिल गया, अपना बाइट मिल गई, चलो.
करते रहेंगे आपस में ये लोग अपना. Because all three of their answers were so good. मेरा ऐसा कोई डिसीजन भाई सोच रहे बैठ के यार मैंने कोई उखाड़ा ही नहीं है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं तुम्हें है. पता ना तुम 3 साल से काम कर रही हो. यू आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू योर फैमिली सिंस यू आर लाइक अ चाइल्ड. You know, 3 साल में हम मट्टी खा रहे थे भाई. भाई and I love how she's like मैं किसे टॉप करूं. मुझे पता है I know you so well. I know you have been because you had a single mother and you had both you and your sister. I know how much you have done for your family. How can you say that? कमाल लड़की है. ला दिया. फुटेज भी खाएंगे. हीरोइन वाला है ना. Yes, हल्का है. एक एहसास तो है आप में भी. No, this is I think all of you. It's so. I mean, I'm so grateful actually, honestly, to Max Life Insurance कि उन्होंने हमें opportunity दी है to have these conversations जो which are about the emotion of money, which is not just about कि हाँ आपने कहाँ invest किया है, कितना invest किया है, क्या कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, because all of those things are driven by the emotion, they're driven by how we have been raised, क्या क्या हमने देखा है, you know, and it's so beautiful that all of you come here and you know you've been so authentic about this, so candid, so honest and raw about this, so thank you for that. I really appreciate it. It just, I mean, every time I do this, पहले मैं सोचता हूँ जब शुरू होती है ना ऐसे राउंड टेबल में सोचता हूँ यार मतलब फाइनेंस की बातें करनी मुझे खुद इतना नहीं समझ आता क्या बात होगी, एंड देन फिर बात करते करते इतना it's so heartwarming, it's so lovely, and you are such beautiful people. I really hope that when your parents watch it, I hope they watch it. When they watch it, I think they'll also recognize कि कितना आप लोग कर रहे हो सबके एक दूसरे के लिए, and they'll also, I suppose, recognize that all the efforts they have put in making you who you are was successful. So good job, guys. You know, congratulations and thank you for being here. I'm so happy that we could do this. Thank you so much for spending your time watching this conversation. This is the second in a 4-part series. I hope you've seen the first one. Now that you've seen the second one, wait for the third one. It's coming very soon. This one's been brought to you by Max Life Insurance and we are very, very grateful to them. If you like this conversation, please do like, share and subscribe to We Are Yuva on all platforms. And please comment